Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am covering the page number 20 of your book. The name of the page is Endangered Birds. Exactly what we have to be learn under this page. In this page, we have to be learn about some endangered birds. Endangered birds means the birds those are in the categories to be एक्सटिंक्ट, जो कि एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आने वाले हैं. एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? एक्सटिंक्ट का मतलब है कि वो बर्ड्स जो ख़त्म हो गए, जो पहले थे इन आर पास्ट बट नाउ इन प्रेजेंट, अब नहीं है, दे आर एक्सटिंक्ट. एंड इंडेंजर्ड मतलब वो बर्ड्स जो कि जिनकी नंबर इतने कम हो गए हैं कि आने वाले कुछ टाइम पीरियड में they may be extinct, they are under endangered, जो खतरे के निशान के ऊपर है. ठीक है, कौन से खतरे के? एक्सटिंक्शन के खतरे के निशान पर है. दे आर इंडेंजर्ड बर्ड्स. सो लेट अस रीड अबाउट सम इंडेंजर्ड बर्ड्स. हम कुछ इंडेंजर्ड बर्ड्स की names exactly learn करेंगे. Picture is given here and we have to be find out the name of these birds. Okay. Let us read the question first. Given below are the pictures of some endangered birds of India. Identify them and write their names using the help box. Okay. So now come on the very first. First one is which bird it is. See here, this one. And help box is given here. This is, and according to help box, the first is Bengal florican. The first is Bengal florican. Okay. Second is a vulture. Vulture है ये एक, but here we have long billed vulture. Long billed vulture. Okay. Third one is a very cute bird. It is the smallest and very beautiful also, with the red beak, and the name of this is Himalayan quail. This is Himalayan quail. Okay. Now come on the fourth one is a very also a very beautiful one. This name is Oriental stork. The name of the word is Oriental stork. Okay. Fifth one बहुत कॉमन बर्ड था ये पहले, बट नाउ इट इज़ इंडेंजर्ड स्पीसीज, और आज इंडेंजर्ड की उसमें कैटेगरी में आ गया है. दिस इज़ आर आउल. ओके. द नेम इज़ फॉरेस्ट आउलेट. फॉरेस्ट ऑलेट. ओके. फॉरेस्ट ऑलेट. फॉरेस्ट जंगलों में पाया जाता था मेनली ये, तो फॉरेस्ट ऑलेट. ओके. नाउ द सिक्स्थ वन इज द सारस क्रेन. सारस एक बड़ा फेमस बर्ड रहा है हमारी क्या कहते हैं, हमारी फॉक टेल्स में, जो हमारी स्टोरीज़ हैं उसमें सारस एक बड़ा ब्यूटीफुल बर्ड माना गया है. द सारस क्रेन इज़ नाउ in the category of endangered birds. Okay, so I am repeating the name of all these birds again. The first one is Bengal florican. Second is long billed vulture. Third is Himalayan quail. Fourth is Oriental stork. Fifth is forest owlet, and sixth is saurus crane. Okay, so all this is about your page number 20. Now come on the page number 21. This page tell us something about some interesting factors about our atmosphere. As you all know, what do you mean by atmosphere? Atmosphere क्या है? That you read in your geography also. Class 7th
in your geography. I think the first or second chapter related to your atmosphere. So you all know that the atmospheric, the term temperature and the precipitation, all these conditions are known as atmosphere. ठीक है. Now here we have to be learn something अबाउट आर एटमोसफेयर. हमारे एटमोसफेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, तो उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो हम अपनी वर्ड वोकैबुलरी के अंदर ऐड करेंगे टुडे. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. देयर आर मैनी वर्ड्स इन साइंटिफिक वोकैबुलरी विच एंड विद सरफेस. ठीक है. एंड स्फीयर के साथ जो एंड होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे साइंटिफिक वोकैबुलरी में. Although they have no link with the spherical shape, जबकि उनका spherical shape से कोई लेना देना नहीं है, कोई link नहीं है. Given below are clues which describe these spheres ending words. Use the help box and write the correct word for each description given. आपको स्फीयर एंडिंग वर्ड्स यूज़ करना है. हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है. ओके. सो लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स. एक इमेजिनरी लाइन है हमारी अर्थ पर जिसे हम इक्वेटर कहते हैं. अब वो डिवाइड करती है अर्थ को इन 2 हाफ्स. दैट इज नोन एज हेमीस्फीयर. दे आर नोन एज हेमीस्फीयर्स. दे आर नोन एज हेमीस्फीयर्स. ओके. नेक्स्ट, द वाटर ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पर जो वाटर मिलता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. पानी से जो पोर्शन हमारी अर्थ का कवर्ड है, that is known as hydrosphere. Okay. Next, a spherical strong steel vessel used for deep sea observation. A spherical strong steel vessel, एक spherical shape में strong steel vessel जो है, जो हम deep sea observation के लिए यूज़ करते हैं, that is known as, उसको किस नाम से जानते हैं? That is known as bathysphere. That is bathysphere. 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 Fourth one, a layer of atmosphere. एटमोसफेयर की एक लेयर है जो एक्सटेंडिंग 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ सरफेस से 1000 किलोमीटर तक है. विच रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स, और जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है हमारी अर्थ सरफेस पर. दैट इज नोन एज आयनोस्फीयर. दैट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज एटमोसफेयर इज नोन एज आयनोस्फीयर. ओके. नेक्स्ट, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ्स मेंटल. हमारी अर्थ की अपर मेंटल, जो हमारा अर्थ की जो क्रस्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है एज यू रीड इन योर जोग्राफी, दैट इज क्रस्ट, कोर एंड मेंटल. तो अपर लेयर ऑफ अर्थ मेंटल, अर्थ की मेंटल की जो अपर लेयर है, हुज कैपेसिटी फॉर ग्रेजुअल फ्लो इज थॉट टू गिव राइज टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. जिसकी कैपेसिटी को हम ये मानते हैं कि वो हमारी कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग, उनको ऊपर या नीचे कुछ राइज करने में हेल्प करती है. दैट इज नोन एज एस्थीनोस्फीयर. दैट इज नोन एज एस्थीनोस्फीयर. ओके. नेक्स्ट, द रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के वो रीजन्स एरिया एंड एटमोसफियर ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. ठीक है. दैट इज बायोस्फीयर. दैट इज बायोस्फीयर्स. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर. दैट इज लिथोस्फीयर. एंड द लेयर ऑफ एटमोसफियर नियरेस्ट द अर्थ इन विच वेदर चेंजेस अकर. एटमोसफियर की वो लेयर जिसमें वेदर, मौसम में चेंजेस आते रहते हैं, दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फियर.
ट्रोपोस्फियर। देखो स्टूडेंट्स, दिस ऑल दीज थिंग्स यू रीड इन योर जोग्राफी बुक, आपने जोग्राफी की बुक में ये सब कुछ रीड किया हुआ है. सो आई थिंक यू दिस चैप्टर इज topic is not very much difficult for you. Only one or two term is here that is new for you, that is asthenosphere and bathysphere. Otherwise all the terms you have read in your geography book. Okay, that's it for today, and the next page we will discuss in the next video. Till then, goodbye, thank you.